Good evening, students. Today is the day 5 of 5 days hands-on machine learning, and we will be continuing with the different problems or projects in the training. Okay, and the projects are repeated from batch 1. Okay, so after the training gets over, we will be sharing feedback form which needs to be filled by you all. Okay, at 9:30 p.m. we will conduct a test which you all must participate to evaluate yourself, and certificates will be sent in your email ID within a month. Okay, so do not worry about it. We'll be also sharing a feedback form which needs to be filled by you all so that we can rectify, we can do better in the next level. Okay. So, and level 2 training will be from 11th August 2023 to 28th August 2023. You all must join as your term and exams and practical exams will get over by then, because the term and exam will be on June, and in the month of July there will be practicals. So in the August you all will be free, so you can join the training and gain a lot of experience. Okay. So, and tomorrow is 1st March. From tomorrow onwards, online classes will commence for different programs. You all must join and study hard. Links will be shared with you, and you should see the course code before joining, because it will be for different programs, different courses. Okay, you all must join and study hard because we are working hard for you. So you have to work hard. Okay, if you have any doubts, you can post it in the comment section. We will clarify your doubts. Okay, now let's start the training will commence from 21st Feb 2023 to 25th Feb 2023 at 8 p.m. Now let's start the training. First, let's go to this Google Chrome. Then what we will do, Google Colab. Google Colab is here. Then welcome to Collaboratory. Yesterday we have understood all these things. Okay, what I am doing. Then new notebook. Concept is same. Okay, now today we'll be doing credit card fraudulation. Over there, what is there means it is an imbalanced class also. How? Because out of 100, 2% will be fraud, and 98 will give will pay the amount, the due amount in a proper time, and 2% will give will not give in proper time. These type of things should happen. Okay, so let me upload that thing. Upload notebook. Downloads. It will delete this. I'll tell you what is happening over here. It will delete all of this. Okay. Now what I will do, the credit card fraud detection, this is taken from the Kaggle data set. Okay, let me go to the Kaggle. The link is also provided here. You can see the credit card fraud detection. The card, yeah, it's content is given, what is there, and everything is written over here. Okay, updated acknowledgements. Okay, credit card CSV. This one is the CSV file that we are going to upload. Yeah, that we are going to download over here. 150 MB. It consists of 150 MB. Okay. एंड कंपटीशन वाज आल्सो देयर. कॉम्पिटिशन्स देखो यहाँ पे कंपटीशन के बारे में भी बोला हुआ है. कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं इसके. ठीक है, तो आप लोग चाहते हो तो उसके कंपटीशन अभी नए नए जो डेटा सेट आएंगे उसके ऊपर, नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे उसके ऊपर आप लोग कॉम्पिटिशन में जा सकते हो. ओके, तो फ्रॉम हियर आई एम टेकन द डेटा सेट. इस जगह से हमने डेटा सेट को पूरा लिया है. कॉलम्स क्या क्या है यहाँ पे दिखेंगे. V1 V2 V3 V4 ऐसे कॉलम्स है. ठीक है, मिस्ड मैच, मिचिंग, स्टैंडर्ड डिविएशन, सबकी कॉलम्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. तो चलो, कॉलम्स तो बहुत सारे होंगे. और ये जो डेटा सेट मैंने जो ये लिया है डाउनलोड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ये सारे जो डेटा सेट है ये क्लीन डेटा सेट है.
और इसमें कुछ इधर अपने ऐसे करके कंपनी ने, यूएसए में जो कंपनी ने ये डेटा सेट प्रोवाइड किया है, ये ऐसे प्रोवाइड किया एकदम प्रॉपर क्लीन करके, ताकि मीन्स कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक की बाहर ना आए। इसलिए वो लोग क्या कि इसको क्लीन करके डेटा सेट को हमें प्रोवाइड किया, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दिस। ओके, तो आई लेट्स गो टू दिस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। लेट्स इंपोर्ट इट। मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सारे पैंडास, नमपाई सब हम इंपोर्ट करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग थोड़ा वेट करें। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू कनेक्ट, तो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग ऑल्सो ना, ये कनेक्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर इंजन से कनेक्ट हो रही हैं। फॉरगॉट टू कनेक्ट, तो इट्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इट्स गेटिंग कनेक्ट, इनिशियलाइजिंग देन इट्स गॉट कनेक्टेड। अब ये हो जाएंगे फटाफट। अब देखो, देखो हो रहे। इफ यू फॉरगेट टू कनेक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट व्हेन यू विल बी रनिंग द कमांड्स। अब डेटा सेट इक्वल टू रीड सीएसवी। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो ये जो ये है, व्हाट इज दिस, ये पाथ हमने तो अपलोड किया ही नहीं है डेटा सेट को, तो डेटा सेट कैसे वो रीड करेगा? तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। लेट्स क्लिक इट। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड। अब अपलोड कहाँ से करेंगे देखते हैं। हमारे 5 days हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग डे 5 में जाते हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में जाते हैं। इसमें देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सीएसवी है, ये सीएसवी ये फाइल है, इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आएंगे, तो लेट इट कम। ये जब तक नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पाथ लेना है। आई देखो, क्रेडिट कार्ड हैज कम हो गई है, क्रेडिट कार्ड डॉट सी एस वी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पाथ को ये कर लेंगे, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ करके इस जगह पे पाथ को हम डाल देंगे और फिर रन करते। 13 रन हो गए। ओके, आप उसका फर्स्ट 5 क्या करेंगे, हम डेटा को देखेंगे फर्स्ट 5। अब देखो क्या क्या टाइम दिया, V1 V2 V3 V4 ऐसे करके दिए, ऐसे करके जा रहे हैं। V26 अमाउंट, उसके बाद क्लास। ये जो क्लास दिया है, इस क्लास का मतलब क्या है? 0 मतलब फ्रॉड नहीं है और 1 मतलब फ्रॉड है, ये ऐसे ही कुछ होंगे। अभी देखते हैं, आगे हम जाएंगे तो देखेंगे ये सारी चीज़ें। अब कितनी रोज कितनी कॉलम से, ये भी हम देखेंगे डेटा सेट डॉट शेप। तो 5974 रोज है और 31 कॉलम्स है। कॉलम्स क्या क्या है, डेटा सेट डॉट कॉलम्स करके हम कॉलम्स निकाल सकते हैं, टाइम V1 V2 ऐसे करके अमाउंट क्लास। ओके, आप डेटा सेट डॉट इन्फो कौन सा न्यूमेरिकल है, कौन सा फ्लोट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सारे निकालने के लिए ये सब यहाँ पे मिल गए हमें। ओके, अब स्टैटिस्टिकल समरी, मीन मीडियन मोड, ये तो न्यूमेरिकल के ही होते हैं, हमने प्रीवियसली येस्टरडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। तो हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे आज, क्योंकि 3 projects are there and lot of work is there, that's why I have to go in a very fast manner। ये सारे आ गए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन, मीडियन मोड कल तो हमने बात की थी, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मिसिंग वैल्यूज़ है, यहाँ पे क्या, ओरिजिनल वैल्यूज डॉट एनी ट्रू। उसके बाद सम करते हैं, 13 है, 13 मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 13 ओनली 13 मिसिंग वैल्यूज आर देयर। अब डेटा सेट डॉट, अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट कितने, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कैटेगरिकल डेटा, कैटेगरिकल कॉलम्स कितने हैं, तो कैटेगरिकल कॉलम्स कितने हैं, 0। उसके बाद काउंट प्लॉट, SNS डॉट काउंट प्लॉट, डेटा सेट क्लास। अब क्लास का हम काउंट प्लॉट करेंगे, 0 और 1। 0 मतलब होता है कोई फ्रॉड नहीं है, और 1 मतलब क्या था, फ्रॉड है। तो इसको हम करेंगे, क्लिक करेंगे काउंट प्लॉट। तो देख रहे यहाँ, कैन यू सी दैट इसमें एकदम ही कम, एकदम जमीन प्लेटे हुए, और ये क्या है, इतना हाई इम्बैलेंस डेटा सेट है, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग कुछ करेंगे ना इम्बैलेंस के ऊपर, हम इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते पहले। आपको नॉन फ्रॉड ट्रांजेक्शन कितना है देखते हैं, 5970। फ्रॉड ट्रांजेक्शन कितने हैं, क्या क्या, डेटा सेट डॉट क्लास इक्वल टू 1। 1 मतलब क्या था, फ्रॉड होता है, तो 3 है, 3 ओनली 3 आते हैं।
आप कोरिलेशन हिट मैट्रिक्स, आपको पता है कोरिलेशन में कोरिलेशन बिटवीन द कॉलम्स हम देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कॉलम है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं कोरिलेशन, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम से ही हम कोरिलेट करके देखते हैं। तो दिस इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स। यहाँ पे ज़्यादा कोरिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये वाला लास्ट वाला है V14 और V17, दीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है इसमें, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। कोरिकल डेटा सेट डॉट कोरिलेशन। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हम हीट मैप के थ्रू से देखेंगे। हीट मैप भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग जा नहीं रहे। देखिए हीट मैप आ गया, इसमें देखेंगे जो कौन सा बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 0 पॉइंट समथिंग का, ये 1 तक जाएगा तो 1 इज़ द हाईली कोरिलेटेड। जैसे V1 के साथ V1 हाईली कोरिलेटेड होते ही है, अपने अपने आपके साथ हमेशा कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड होता है, ठीक है। तो इन दैट वे टाइम के साथ टाइम देखो 1 है, ये सारा हाईली कोरिलेटेड क्योंकि वो खुद के साथ है। अब बाकी हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से देख के हम लोग पता करेंगे जो कौन सा हाईली कोरिलेटेड कौन सा हाईली कोरिलेटेड नहीं है। चलो वो तो ठीक है। अब डेटा सेट डॉट हेड, हेड में क्या होगा, या फर्स्ट 5 कॉलम्स आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स में क्या करेंगे, लास्ट वाला कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। क्यों ड्रॉप कर देंगे, दैट वन इज द आउटपुट। आउटपुट का हम वाई में लेंगे, तो हम आउटपुट को वाई में ले लिए। अब क्या, फ्रॉम स्क्वायर मॉडल से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, स्प्लिट करेंगे विथ सेम जैसे हमने किए थे, टेस्ट साइज इक्वल 0.2। उसके बाद एक्स ट्रेन डॉट शेप में क्या आ गया, ये वाला आ गया। और वाई ट्रेन डॉट शेप, रोज और कॉलम्स वाई ट्रेन डॉट शेप में क्या आ गया, इतने 4779 आ गया। उसके बाद एक्स टेस्ट डॉट शेप, वाई टेस्ट डॉट शेप, ऐसे करके हम देखेंगे, चेक करेंगे। मतलब फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग किस लिए होता है, ताकि हम लोग का जो एरर्स है, एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसके लिए हम फीचर स्केलिंग करेंगे। तो एक्सटेंड एक्सटेंड सबको हम मिनिमाइज ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, स्केलिंग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल बिल्ड करेंगे। ये करने के बाद देन वी आर गोइंग टू बिल्ड द मॉडल, वही सेम स्टाइल जो मैंने कल करवाया था। कल का यदि आप लोग किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज़ गो थ्रू इट। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्ड में 2.5 आवर्स के हमने सेशन की है, 2.5 आवर्स, ठीक है। तो उसमें सारे बातें हमने की है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, थोड़ा फास्ट मैनर में चल रहे हैं, क्योंकि और नॉट ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट, उसके बाद भी बहुत सारा टास्क है दैट वी हैव टू डू इट। तो सो आई विल गो इन ए फर्स्ट मैनर। अब पहले, अब ये क्या है, दिस वन इज ए क्लासिफिकेशन, क्योंकि येस और नो, 0 और 1 क्लासिफिकेशन होगा तो उसमें क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेंगे, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें लगते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर डॉट मॉडल इनपुट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वही सेम स्टाइल, क्लासिफायर लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। उसके बाद क्लासीफायर अंडरस्कोर एलआर डॉट फिट, एक्सटेंड वाई ट्रेन को फिट कर दो, करते देखते हैं। उसके बाद टेस्ट करते हैं, वाई देखो एरर आ गया ना, एक्स टेस्ट, क्यों एरर आया देखते हैं। इनपुट कंटेंट्स नन, नैन इन्फिनिटी और वैल्यू टू लार्ज फॉर डेटा टाइप फ्लोट 64। ओके 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 ओके, मतलब नैन वैल्यूज है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे किए थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नैन वैल्यूज है। कहाँ पे, डीलिंग विथ मिसिंग। अब हमें यहाँ पे देखना है कौन कौन सा नैन वैल्यूज है, कौन कौन सा नैन वैल्यूज नहीं है, ये भी तो हमें चेक करने हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे हम, तो इसके लिए भी कुछ कोडिंग हमने लास्ट टाइम किए थे, तो वो सारे कोडिंग हम देखेंगे अभी। ओके, तो व्हाट टू डू विद द नैन वैल्यूज, एनी आइडिया, आप लोग कुछ बता सकते हो। इज एनी हो गया, डॉट सम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कौन कौन सा इसमें है हम देखेंगे, कौन कौन सा। एक मिनट लेते हैं, देखो प्लस कोड, डेटा सेट, डेटा सेट, डॉट कॉलम्स, डेटा सेट डॉट कॉलम्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेटा सेट डॉट वैल्यूज डॉट इज एनी। देखिए कौन कौन से कॉलम में है, पहले कंट्रोल सी और यहाँ पे हम डालेंगे कंट्रोल वी, देखते हैं।
तो ये इतनी सारे में टाइम v1 v2 v3 v4 ये सारे में क्या है, नल वैल्यूज है। ठीक है, अब लेंथ देखते हैं, फिर कुछ ले लेते हैं, प्लस कोड प्लस कोड प्लस कोड ले लेते हैं, एलियन अब ये सारे ले लो, लेंथ देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, 1 दिख रहा है मुझे। ओके, अब क्या करेंगे, ये सारे में हम कौन कौन से नल वैल्यूज है, डेटा सेट डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट एनी। तो क्या कह रहे हैं, टाइम v1 v2 इस सारे में नल वैल्यूज है, कितनी है टोटल एलिमेंट्स, लेंथ ऑफ डेटा सेट डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज डॉट एनी करने से तो सारा आना चाहिए था। एक बार फिर करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखेंगे नल परसेंट, NULL नल परसेंट, नल परसेंट इक्वल टू डेटा सेट डॉट इज नल डेटा सेट डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन। डिवाइडेड डेटा सेट डॉट सेट डेटा सेट डॉट शेप ब्रैकेट पे 0 लिख दो इंटू 100 इंटू, आप नल परसेंट चेक करते, सब 0 0 है। तो हम क्या करेंगे, डेटा सेट डॉट, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, डेटा सेट डॉट डेटा सेट ब्रैकेट में टाइम ले लो, v1 ले लो, टाइम डेटा सेट टाइम डेटा सेट डॉट फिल ना
डॉट फिलना, उसके बाद फिर ब्रैकेट में A1 लिख दो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डॉट MEAN मेन फंक्शन। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारे सारे रोज के लिए कर देते हैं कितने हैं। अब सारे के लिए करेंगे, कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 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 कंट्रोल V। अब हम क्या करेंगे, कौन कौन सा था कॉलम, V1, V2, V3, V4, V5 से कितने तक है, V10 से V28, V28। V1, V1, इसके भी V1 करो। थोड़ा मुझे टाइप करने में टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे टाइप करने की आदत नहीं है उतनी। यहाँ पे V2, तो ऐसे करके आप लोग क्या करोगे, V2, V3 ऐसे करके करोगे। उसके बाद सारे करके आपको क्या करना है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट यही टेस्ट स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लासीफायर से वाइट प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा, इस तरह का कोई परसेंटेज आएगा। आप लोग देखोगे रैंडम फॉरेस्ट में भी ऐसे कोई परसेंटेज आएगी, इसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज होगा वही हम लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे यू टू डू इट। आप लोग खुद करोगे, कुछ इशू होगा तो फिर आप लोग डाउट सेशन में आ जाना। ठीक है, डाउट सेशन में विल डिस्कस अबाउट इट। डिस्कस करने कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे करे करोगे तो यू कैन डू इट। सिर्फ टाइपिंग करना, टाइपिंग कर, यहाँ पे V1 है, फिर V2 होगा, V3 होगा, ऐसे करके आपको सबको क्या करना है, मीन से कर दो, मीन से कर दो तो यू विल गेट द आंसर। ओके, so this is the first project. Now let's go to the second project. Okay, now let's go to the second project. One sec. Now let's start with the second project, car price prediction. Okay, so let's open this. Okay, then what we'll do, we'll take collaboratory. Please wait. Now this is a new notebook. Now we are going to upload that file. Okay, upload notebook. Use car price prediction. Let me take it. आपको जो प्रीवियस वाला जो प्रोजेक्ट है उसको आपको खुद करना है। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यूज करके उसके बाद एज यूजुअल करोगे। लास्ट फोर्थ जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था उसमें भी आपने पूरा डिटेल्स में किए थे। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग करोगे, यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू। आप क्या करेंगे, हमें ये इसमें चलते हैं कैगल में। कैगल से हमने ये डेटा सेट को उठाया था, देख रहे हो, व्हीकल डेटा सेट कैगल इज हियर। ठीक है, यहाँ से हमने डेटा सेट को उठाया था, नेम, ईयर, सेलिंग प्राइस, क्या, किलोमीटर ड्रिवन, फ्यूल, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन, ओनर, ये सारे क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेटा सेट को उठाए थे, यहाँ से डाउनलोड करके आप करोगे। हमने आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। ठीक है, तो आई डू नॉट हैव टू डाउनलोड अगेन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। ओके, तो क्या करेंगे हम, पहले तो अपलोड कर लेते किसको, फाइल को। से फाइल को आने दो, लेट मी अपलोड दैट फाइल, CSV फाइल।
कौन सी थी? यूज्ड कार प्राइस प्रेडिक्शन। ये देखो कार डॉट डेटा, कार डेटा दैट आई हैव डाउनलोडेड, ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। ओके कर दो। अब देखते हो वो आया क्या नहीं। लेट मी सी। कार्स डेटा, ये देखो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इंपोर्टिंग कर द लाइब्रेरीज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? ये कार जो डेटा है इसकी क्या करेंगे? पाथ को कॉपी करो। कॉपी पाथ, कैन यू सी हियर? कॉपी पाथ, कॉपी पाथ। कंट्रोल वी। ठीक है, देखो डेटा सेट डॉट हेड। तो क्या होगा? ये देखो कार आ गया, या ईयर आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, प्रेजेंट प्राइस आ गया, किलोमीटर ड्राइवन, फ्यूल टाइप, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन ओनर, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब डेटा एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करेंगे। कितने कितने क्या है? रोज कॉलम्स कितने हैं? रोज है 301, कॉलम्स कितना? 9 है, 9 कॉलम्स। नाउ डेटा सेट डॉट कॉलम्स, कौन कौन सा कॉलम्स है देख लेते हैं। तो कार नेम, ईयर, सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट प्राइस, किलोमीटर, ये सारे हैं, इतने सारे कॉलम्स। अब इन्फॉर्मेशन कौन सा नॉन न्यूमेरिक है, कौन सा न्यूमेरिक है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लिया ऑब्जेक्ट कार नेम। ठीक है, उसके बाद और ऑब्जेक्ट कौन से है? फ्यूल टाइप, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें। अब कैटेगरी कॉलम्स देखते हैं, कितने कैटेगरी कॉलम्स है, कौन कौन सा है। तो ये कार नेम, फ्यूल टाइप, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन, ये सारे। आप लेंथ कितने हैं? 4 4 ही है, 1 2 3 4, हम तो दिख ही रहे। अब न्यूमेरिकल कॉलम्स क्या होगा? इंट फ्लोट दोनों होंगे। ठीक है, तो कितने? 5, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 हो रहे हैं। तो 5 + 4 = 9। अब डिस्क्राइब करेंगे, डेटा सेट डिस्क्राइब क्या करेंगे? मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ होते किसके? न्यूमेरिकल कॉलम्स की। ओके, अब डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज। अब फॉल्स है, फॉल्स मतलब क्या? कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। तो हमारे काम क्या हो गया? ईजी हो गए। तो क्या हो गया? आउटपुट क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ये इट गॉट ईजी। अब डेटा सेट डॉट हेड करेंगे तो फर्स्ट 5 कॉलम्स हमें दिख गए। उसके बाद ड्रॉप करेंगे कार नेम। कार नेम को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि कार नेम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? कार प्राइस प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, तो उसके लिए कार नेम करना है। एज, एज इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एज देखेंगे, उसके बाद कार नेम की कोई मतलब नहीं है अभी, यहाँ पे एज की मतलब है। क्योंकि कार नेम जितनी बढ़िया हो और यदि एज यदि ज़्यादा है तो फिर इट हैज़ नो वैल्यू, आई एम टेलिंग यू। इन दैट कंटेक्स्ट आई हैव डिलीटेड दैट कॉलम। अब क्या हुआ? कार नेम, ये जो कार नेम है इसको मैंने डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया उसको, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक कॉलम ऐड करेंगे। कौन सा? करंट ईयर। अभी करंट ईयर क्या है? करंट ईयर क्या है अभी? 2023। तो यहाँ पे 2023 लिख दो। अब देखते हैं, 2023 आ गया। ठीक है, अब डेटा ईयर ओल्ड इक्वल डेटा करंट ईयर माइनस डेटा सेट ईयर। ठीक है, करते हैं। तो अब ईयर्स ओल्ड निकल जाएगा। डेटा सेट डॉट हेड, अब कितने साल पुराना है ये भी एक ऐड हो गया। ईयर्स ओल्ड, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 6 साल, कोई 12 साल, इस तरह का है। ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग। आप क्या करेंगे? ये करंट ईयर, यहाँ पे करंट ईयर है और ईयर है, ये दोनों की तो जरूरत नहीं है हमें। ईयर्स ओल्ड निकल गए, क्योंकि हमें ईयर ओल्ड कितने साल पुराना वही मतलब है, उससे पता चल जाएगा ना ये कब हमने ये कार कब की है। हम क्या करेंगे? दोनों को ड्रॉप कर दो, जरूरत ही नहीं है हमें, हमने ड्रॉप कर दिया। आप डेटा सेट डॉट हेड देखो, दोनों ड्रॉप होने के बाद अभी दिख रहे हैं, ईयर्स ओल्ड दिख रही है और सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट प्राइस, किलोमीटर, फ्यूल टाइप, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन ओनर, ये सारे दिख गए। अब ये 3 क्या है? ये जो 3 है, ये 3 क्या? कैटेगरी कॉलम है। फ्यूल टाइप, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको क्या करना है? न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। अब ये सेलर टाइप, कितने टाइप का सेलर है वो भी तो हमें देखना है। कितने टाइप के? बहुत सारा टाइप का होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम चेक करते हैं पहले, आगे लेंथ। अब देखते हैं लेंथ कितना? 3 है, 3 कैटेगरी कॉलम्स है। अब एन यूनिक, फ्यूल टाइप में क्या किया? एन यूनिक कर दिया। तो 3 टाइप का फ्यूल है, या फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप का है, पेट्रोल है, डीजल है, एक और होगा कुछ, सपोज गैस होगा, ऐसे कुछ होगा, हमें दिख नहीं रहे क्योंकि वो भी एक होगा। अब सेलर टाइप क्या है? 2 सेलर टाइप है, एक डीजलर होगा, वो कुछ और होगा। ठीक है, और देखते हैं, सेलर टाइप हो गया। ट्रांसमिशन टाइप क्या है? मैनुअल होगा और एक ऑटोमेटिक होगा ऑब्वियसली। ठीक है, आप डेटा सेट डॉट शेप, शेप में देखते हैं कितना? 301 रोज, 8 कॉलम्स है। ओके, अब क्या करेंगे? ये जो है ये सारी चीज़ें, फ्यूल टाइप, सेलर टाइप, इसको क्या करना पड़ेगा? 1 हॉट एनकोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें रीड नहीं करेगा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल। इसको क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिक में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमने पहले भी पिछले पिछले डे 4 में भी हमने की थी।
तो वन हॉट हेडिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट को हम ट्रू कर देंगे, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या होगा, फर्स्ट जो कॉलम होगा उसको यदि हम हटा दें तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो रिलेशनशिप, नहीं तो क्या करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल रिलेशनशिप बनाने लगेगा वो कॉलम्स में, वी डू नॉट वांट दैट रिलेशनशिप। इट्स वर्किंग, प्लीज वेट। ओके, आप डेटा सेट डॉट हेड इसको रिकनेक्ट करो पहले। एक सेकंड वो कभी कभी हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर इसको रिकनेक्ट करना पड़ता है। प्लीज वेट। ये भी एरर आएगा क्योंकि ये वाला चला ही नहीं है कोड। इट्स टेकिंग टाइम। ओके, तब तक आगे हम देखते हैं। तो डेटा सेट डॉट हेड करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। ओके, आप डेटा सेट डॉट शेप करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, कॉलम्स बढ़ जाएंगे क्योंकि ये सारे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूल टाइप, डीजल, पेट्रोल, ये एरर क्यों आ रहे हैं। इंटरनेट इशू आई थिंक, लेट मी सी। इट्स इंटरनेट इशू, ओके, प्लीज वेट। ओके, लेट मी गो फर्दर। आप कोरिलेशन मैट्रिक्स डेटा सेट डॉट टू डेटा सेट डॉट सेलिंग प्राइस को हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, दिस इज द आउटपुट। ओके, तो आई एम ड्रॉपिंग दैट। ठीक है, आई डो नॉट वांट द आउटपुट, आउटपुट के साथ हम कोरिलेशन करके दिखाएंगे ना, दैट्स वाई। देखो टाइटल कोरिलेटेड विद सेलिंग प्राइस, डेटा सेट सेलिंग प्राइस डॉट प्लॉट डॉट बार्ड, ऐसे करके हमने आउटपुट ये है, इसके साथ कोरिलेशन हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो हम व्हाट वी आर सेइंग, प्रेजेंट प्राइस is correlated with selling price. Unable to connect. कुछ सर्वर इशू आ रहा है आई थिंक। कनेक्टेड, इट गॉट कनेक्टेड, थैंक गॉड इट गॉट कनेक्टेड। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए वन हॉट एनकोडिंग करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद डेटा सेट डॉट हेड देखते हैं अब, थैंक गॉड इट्स देयर। उसके बाद डेटा सेट डॉट शेप, उसके बाद कोरिलेशन मैट्रिक्स हम देखते हैं। आप कोर इक्वल डेटा सेट डॉट कोर,
उसके बाद हम हीट मैप करेंगे। हीट मैप से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, डायग्राम से तो सारी चीज़ें पता चले। आप एग्जाम्पल देख लो, डायग्राम में क्या है, देखो -0.98 ये दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह में जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, -0.98। तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है किसके साथ, फ्यूल प्राइस टाइप और फ्यूल टाइप डीजल, दे आर नॉट कोरिलेटेड टू ईच अदर। उसके बाद देखते हैं किससे हाईली कोरिलेटेड है, ये भी देख लें। 0. अच्छा ये भी नहीं है, 0.0, 0.48, 0.47, 0.063, 0.35, हाईली कोरिलेटेड कुछ भी नहीं है, मीन्स द डेटा सेट इज फाइन। आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द डेटा सेट को पहले देख लेते हैं। उसके बाद एक्स में क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को हटा देंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस इज द आउटपुट, उसको वाई में ले लेंगे हम। ओके, आप फ्रॉम स्केलर डॉट इम्पोर्ट ट्रेंड स्प्लिट, ये तो हमने पहले किए थे। एक ही स्टाइल, कोडिंग स्टाइल इज सेम, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कोडिंग स्टाइल इज सेम। 248 y10 dot shape, 240 x-test dot shape, उसके बाद y-test dot shape। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, एक मिनट में देखूँ यार, हाँ ठीक है, दिस आर द थिंग्स। तो हमारा बहुत कमी है, 1 2 3 तीन ही चीज़ें यहाँ पे, किलोमीटर ड्राइव एंड ऑल दिस थिंग्स। आप क्या करेंगे, मॉडल्स यूज करेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, जैसे हमने यूज किए थे रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि आउटपुट इज ए रिग्रेशन, आउटपुट इज न्यूमेरिक, दैट्स वाई रिग्रेशन हम यूज करेंगे। फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर डॉट मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, वही सेम जो मैंने पहले किए थे। आप लीनियर ये वाला करो रन। ओके, नाउ वाई प्रेडिक्ट, ठीक है, इंपोर्ट R2 स्कोर। अब R2 स्कोर से प्रेडिक्ट करेंगे हम, देखो 0.91। तो दिस इज गुड, माने इस मॉडल के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अच्छा है। आप क्या करें, रैंडम फॉरेस्ट, हम दो ही यूज़ किए, ज़्यादा यूज़ नहीं किए, हम दो से ही पहले देखें। एक्स टेस्ट को डालें, उसके बाद R2 स्कोर से हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे जो कैसे चल रहा है। तो 0.95, स्टिल रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन इज बेटर देन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस जो है प्रॉब्लम जो मैंने अभी किया और अभी का प्रॉब्लम, ये सारे डेटा सेट मैं आपको, डेटा सेट तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये जो कोडिंग है, कोडिंग सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो कोडिंग आप लोग खुद करके, आप लोग चेंजेस वगैरह करके आप लोग खुद अपना देख लेना। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू द लास्ट प्रोजेक्ट। व्हाट इज द लास्ट प्रोजेक्ट, लेट मी सी। लास्ट प्रोजेक्ट इज डे 5 की लास्ट प्रोजेक्ट क्या है, एम्प्लॉय एट्रिशन प्रेडिक्शन। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट हमें करना है। तो दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट, प्लीज वेट, लेट मी टेक द प्रोजेक्ट। नाउ वी कम अप विद द थर्ड प्रोजेक्ट। ओके, एम्प्लॉय एट्रिशन। Okay, employee attrition prediction, I have already uploaded the notebook file. Okay, now I'm going to upload, and it is from this data set is taken from Kaggle. Let me show you. Employee attrition. Okay, this is taken from Kaggle. Okay, so what happens, what is this about actually, employee attrition? This is actually, that means which there are so many employees, and which employees are useful to me, which are not useful to me. So those who are useful, those employees which are useful, which can give me more profit, I'm going to keep those employees in my company, and those who are not good, those who are not performing properly, I'm going to discard those people. So it is about that only, employee attrition. So different factors are there, that how see, environmental satisfaction, low, medium, high is in that way. Education क्या है, below college, job involvement क्या है, low, medium, poor, very high. So all these things, these are the relationship satisfaction, किस तरह relationship है, work life balance, is it balancing properly or it is poor. Okay, performance rating, low, good, excellent, ये सारी, these are the different factors। उसके ऊपर हम एम्प्लॉय को रखेंगे या हम एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देंगे। तो these are the things। ठीक है, ये इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, वी आर गोइंग टू मेक इट। और इसकी जो ये है डेटा, ये है डेटा सेट है, ये यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, तो आई एम नॉट डाउनलोडिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
So what we will do, first let me upload the data set. Okay, let me upload employee design. Can you see this one? So I'm uploading it over here. Okay, I hope it has been uploaded. Let me see. Employee, this one. Now what I will do, पहले तो इंपोर्ट करो numpy, pandas, pd, matplotlib, ये सब करो. उसके बाद क्या करेंगे, डेटा सेट को ये करेंगे, ठीक है, रीड करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉपी पाथ को कॉपी करेंगे, पहले कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे. Pasted here. Okay, done. Now one sec please. Then dataset.head. So you can see the first five rows. So attrition, business travel, daily rate, department, distance from home, education field. Okay, all these things are there. Then dataset.shape. क्या कितने रोज कितना कॉलम्स वो दिखेंगे हमें. 1470 रोज है, 35 कॉलम्स है. dataset.columns, इतने सारे कॉलम है. इंफॉर्मेशन, तो कौन सा ये न्यूमेरिकल है, कौन से कैटेगरिकल है, वो देखने के लिए हमें dataset.info करना पड़ता है. ये सब आप लोगों को पता है. इन कैटेगरिकल कॉलम्स इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट करने पे आ जाएंगे. उसके बाद लेंथ देखेंगे, लेंथ इक्वल टू 9. उसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल कॉलम्स, इतनी सारे न्यूमेरिकल कॉलम. इसका लेंथ देखें, काफ़ी होंगे, ये 26 हो गए. आई थिंक 9 तो उधर है, हाँ 26 और 9 35. अब डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब उस जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसका डिस्क्राइब करेगा. मीन, मीडियन, मोड, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, काउंट, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, हमें जल्दी ख़त्म करने हैं इस ट्रेनिंग को. उसके बाद हमारा एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसके बाद एक टेस्ट भी है. दैट्स वाई आई एम डूइंग इट इन ए फास्ट पेस मैनर एंड यू टू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, डेटा सेट डॉट हेड, ये सारे आगे. अब हम ड्रॉप करेंगे एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय नंबर, ओवर 18, स्टैंडर्ड आवर्स, ये सारे ड्रॉप करेंगे. ये सब ज़रूरत नहीं है हमें निकालने के लिए, ये सारे फैक्टर्स नहीं होते हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस कॉलम्स. ओके, अब देखिए एम्प्लॉय काउंट क्या होगा. डेटा सेट एम्प्लॉय काउंट एन यूनिक, ठीक है, 1 है. एम्प्लॉय काउंट डॉट यूनिक अरे 1. अब ओवर 18, ये सारे जो हमें डिलीट करना वो देखते हैं. ये तो काउंट कितना है, 1 ही है. तो ये सारे क्या कोई काम के नहीं है हमारे, ये सारे हम डिलीट कर देंगे. स्टैंडर्ड अरे 80. अब क्या करेंगे, ये सबको ड्रॉप करने के लिए देखो कॉमा कॉमा देखे हम, ये सारे जो कॉलम्स है इसको हम डिलीट कर देंगे. उसके बाद आप डेटा सेट डॉट शेप करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे कॉलम्स. आप डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज, फॉल्स है, फॉल्स मतलब एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया. अब काउंट प्लॉट, plt डॉट शो एट्रिशन देखते हैं, ये वाला है, येस है, यहाँ पे नो है. मतलब क्या येस नो है, मतलब क्या ये किस तरह की, ये हमारा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह की है आप लोग को समझ है. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये है एक होता है रिग्रेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन. दिस इज क्लासिफिकेशन टास्क. ओके, तो येस और नो किसको निकालना है, इतने सारे लोगों को निकालने हैं, 200 लोगों को निकालने हैं, 1200 लोगों को नहीं निकालने. तो ये यहाँ पे दिख जा रहे हैं हमारे. एम्प्लॉयज हु लेफ्ट द कंपनी, एट्रिशन इक्वल टू येस, और नो कितना है, नो बाकी सारे होंगे. नो 1 2 3 3, 1 2 3 3 दिस वन. अब हिट मैप तो आपको पता है कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए होंगे. ये सारे हमने किया हुआ पहले. हिट मैप है, किसका साथ कितना कोरिलेशन है, हाईली कोरिलेटेड, ये देखने के लिए है. ठीक है, ये आप लोग खुद देखोगे, हाईली जो है जब 0.77, ये बहुत हाई है. ये किसके साथ है, टोटल वर्किंग आवर्स और होम. ये क्या है, मंथली इनकम. इसका इनकम ज़्यादा है या वो ज़्यादा काम कर रहा है. ठीक है, तो इन दैट वे. ठीक है, 0.7. जॉब लेवल जिस तरह का है, टोटल वर्किंग आवर्स, तो उसका 0.78. इस तरह का हम लोग को देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन आंसर प्रॉपरली. अब इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ये सारी चीज़ें. लेंथ देखो,
ऑब्जेक्ट मतलब कैटेगरी कॉलम्स। अब डेटा सेट डॉट शेप ये है, अब वन हॉट इनकोडिंग करेंगे हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे। ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू टू अवॉइड डमी वेरिएबल ट्रैप। अब ये ज़्यादा हो जाएंगे कॉलम्स, देखो ज़्यादा हो गया। अब लेंथ अब आप देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कैटेगरी कॉलम्स और नहीं होंगे, नहीं है। अब डेटा सेट डॉट हेड ये सारे दिखेंगे आपको, ओके। आप क्या डेटा सेट रीनेम, एक कॉलम का हम रीनेम करेंगे, एट्रिशन ये इसको एट्रिशन कर देंगे, ठीक है। इन प्लेस इक्वल ट्रू ट्रू मैंने क्या करेंगे उसको रीनेम करेंगे, रीनेम करके हम देखेंगे एट्रिशन है कहाँ पे, देखें डेटा सेट डॉट हेड, आप देखते हैं एट्रिशन एट्रिशन तो एट्रिशन कहाँ पे है, एक मिनट देखें। एट्रिशन इसको एट्रिशन किया इन्होंने, वो कहाँ गया है? ये आप लोग खुद देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है, तो इसके बीच में कहीं होंगे, ओके। इसके बाद क्या है, स्प्लिटिंग द डेटा सेट, कॉलम्स इक्वल टू एट्रिशन, ठीक है। इसको ड्रॉप कर देंगे एट्रिशन को, एट्रिशन ठीक है, इसको ड्रॉप कर देंगे, उसको वाई में डाल देंगे क्योंकि दैट वन इज द आउटपुट। नाउ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट 0.2 80 20%, टेस्ट में जाएगा 80%, ट्रेन में जाएगा एक्सटेंड डॉट शेप, वाई ट्रेन डॉट शेप, एक्सटेंड डॉट शेप, वाई टेस्ट डॉट शेप, ठीक है। आप फीचर स्केलिंग, अब एक्सटेंड और एक्सटेंस देखो, इससे फीचर स्केलिंग हो गया, ठीक है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस लिए होता है, हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए होता है। आप देखते हैं करते हैं, इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हमारा उसमें R2 स्कोर यूज होता था प्रेडिक्शन, इसमें रिग्रेशन में, इसमें क्या होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज होगा और एक्यूरेसी स्कोर यूज होंगे, ये दो चीज़। अब क्या क्या प्रिंट अकॉर्डिंग ए सी सी इंटू 100 मतलब क्या परसेंटेज में आ जाएगा, यहाँ पे कितने परसेंटेज है, एक्यूरेसी कितने हैं 88%। तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में से जब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें 88% है। अब रैंडम फॉरेस्ट से देखते हैं, रैंडम फॉरेस्ट इज ऑलवेज गुड, लेकिन देखते हैं ये कितना है 85%। अब इसमें देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, दिस इज ऑल्सो फॉर रैंडम क्लासीफायर, क्लासीफाई करने के लिए होते हैं। तो वी आर सेइंग 86%, तो हमारा क्या हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन इज वर्किंग फाइन विद द डेटा सेट। तो क्या होगा, जरूरी नहीं जो कोई भी रैंडम फॉरेस्ट ही होंगे, तो मीन्स अकॉर्डिंग टू डेटा सेट